Namastasयै namo namaha. Ya Dev Sarvabhuteshu Shaktirupena Samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shantirupena Samstita. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Namastasyai, namastasyai, namastasyai namo namaha. Savitri, Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 1, The Pursuit of the Unknowable. All from his peasants born was now undone. Nothing remained the cosmic mind conceives. Eternity prepared to fade and seemed a hue and imposition on the void. Space was the fluttering of a dream that sank before its ending into nothing's deeps. The spirit that dies not and the Godhead's self seemed myths projected from the unknowable. From it all sprang, in it is called to cease. But what that was, no thought nor sight could tell. Only a formless form of self was left, a tenuous ghost of something that had been, the last experience of a lapsing wave before it sinks into a bournless sea. As if it kept even on the brink of naught, its bare filling of the ocean whence it came, a vastness brooded free from sense of space, an everlastingness cut off from time, a strange sublime inalterable peace, silent rejected from its world and soul. A stark companionless reality answered at last to his soul's passionate search. Passionless, wordless, absorbed in its fathomless hush, keeping the mystery none would ever pierce, it brooded inscrutable and intangible, facing him with its dumb, tremendous calm. It had no kinship with the universe. There was no act, no movement in its vast. Life's question met by its silence died on her lips. The world's effort ceased convicted of ignorance, finding no sanction of supernal light. There was no mind there with its need to know. There was no heart there with its need to love. All person perished in its namelessness. There was no second. It had no partner or peer. Only itself was real to itself. A pure existence, safe from thought and mood. A consciousness of unshared immortal bliss. It dwelt aloof in its bare infinite, one and unique, unutterably soul, a being formless, featureless and mute, that knew itself by its own timeless self, aware forever in its motionless depths, uncreated and unborn, the one by whom all live, who lives by none. An immeasurable luminous secrecy, guarded by the veils of the unmanifest, above the changing cosmic interlude, abode supreme
immutably the same, a silent cause occult, impenetrable, infinite, eternal, unthinkable alone. End of Canto 1. Om Savitri. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमान श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट राउरकेला आनुकूल्य अनुष्ठित होता मासिकिया आध्यात्मिक आलोचना चक्र जहाँ श्री अरविंदर प्रणीत विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द एसेसन गीता ओडिया रे जहाँ कहूँ गीता निबंधमाला तार आलोचना हो आसुची एथिरे ट्रस्टर अत्यंत वरिष्ठ एवं जो माने एक सामाजिक प्रेरणा नहीं आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं काम करुछंती प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महांती मैडम डॉक्टर ज्योत्सना पट्टनायक क्षितिश भाई एवं अन्य जड़े वरिष्ठ पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी जड़े संस्कृतिविद महेंद्र कुमार पट्टनायक महोदय एमानकर आशीर्वाद रही से स्नेह प्रेरणा ए दिगरे अनुप्रेरित होगा एक प्रकार आमको साहाय्य करुछे। यही कार्य सहित दीर्घ दिन धरी जड़ित थिबा समस्त भाई भणी जो माने ये कार्यक्रम को मास मास धरी आगे नहीं कि आज आम चतुर्दश अध्याय गीता निबंधमाला पहुँचीचु। गोटे गोटे अध्याय को सारिबा को तार सारांश बा तार मूल कथा गुड़िक कहवाकू हे तो गोटे क्लास लगे केबे गोटे गोटे अध्याय पर 2-3 क्लास लगी जाए ता अध्यायर गोटे आकार उपरे एवं ता भितर सन्निहित कथावस्तु उपर निर्भर करे। आम गत वर्ष गत मासरे गत आलोचन जो प्रति मासर शेष रविवार रे अनुष्ठित होची से दिव्य कर्मर नीति संपर्क रे आलोचना हमें आरंभ करथिले। तो कर्म एक गहन विषय आमे बिना कर्म रे गोटे मुहूर्त मध्य तिष्ठि रही परिबा नहीं। मोर धारणा हेउछि शताधिक वर्ष तळु बा हजार हजार वर्ष तले मनीष मानकर कर्म सीमित थिला। अल्प किछि कर्म को नै ସେମାନେ बंचुथिले। कृषि कर्म उपासना निजर पशुपालन निजर पिला मानक लालन पालन एवं राजकार्य युद्ध ये किछि कथा रही किंतु यही समय क्रमे आज जगत रे हजार 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 गुण रे कर्म बढ़ी। आमे शिक्षा संस्कृति गवेषणा कला सबु क्षेत्र को आज उन्मुक्त कर देइछंती एवं समस्ते कर्म को एक वृत्ति रूप रे आमे ग्रहण करिछु। आधुनिक मनुष्यर मनटी अधिक कर्म प्रवण। अन्य गोटे दृष्टिकोण जदि विचार करा जाए ताले कर्म करिबाटा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे कर्मर फल प्राप्त हवा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे किंतु कर्मर गुणवत्ता संपर्क रे विश्लेषण करिबा एवं कर्मर उद्देश्य लक्ष्य संपर्क रे जानिबा बेसी प्रयोजनीय एवं किभଳି भावरे आम कर्म को आमे गोटे पूर्णता आड़ को नहीं परिबा सिद्धि दिगरे नहीं परिबा भगवान आड़ को नहीं परिबा एक सत्य आड़ को नहीं परिबा एक विराट उद्देश्य साधन रे व्यवहार करि परिबा सेही अनुसारे आमर जो आधार आमर शरीर आमर चेतना आमर मन आमर बुद्धि से माने विकास लाभ करिथांते। तेणु कर्म होछि एक पूजा आम शरीरर कर्म होछि गोटे साधना
एवं आम पुरातन मुनि ऋषि माने ये कर्म को कर्मयोग नाम अभिहित करथिले। कर्मयोग अत्यंत व्यापक विषय। पुरातन सभ्यतारे वा संस्कृति रे जो मनीष माने रहथिले से माने एक पुरुषार्थ पर निर्भर करथिले। तांको कर्मटी तांको सही धर्म अर्थ काम मोक्षर पथरे नौछि कि नहीं तार एक आध्यात्मिक विचार से माने करुथिले, एक धार्मिक विचार करुथिले। क्रमशः कर्मटी पाप पुण्य भूल ठीक नीति अनीतिर पर्याय दे आज एभली गोटे समय रे पहुँची जो कर्मर बहुलता रही। कर्म को जदि आम तालिका करवा जोता सिलेरु चंडीपाठ जाए आज जिते प्रकार कर्म अच्छी जिते प्रकार वृत्ति रही जिते प्रकार कौशल रही से गुड़िक बहुत बेसी। तेणु आजिर मनीष अधिक कार्य करुच्ची। अतीतर मनीष पाखरे कार्य वास्तविक कम थिला, तार बुद्धिर सेते विकास ही नथिला, विज्ञानर एते विकास ही नथिला। तेणु आज विज्ञानर विकास हवा फल बुद्धिर विकास हवा फल मनर विकास हवा फल शहरी सभ्यतार नागरिक जीवनर विकास हवा फल आमे आज अधिक कार्य पाइछु एवं ये जो आधुनिक मनीष अधिक कर्म प्रवण सीए मुनि ऋषि मानक परि एक उत्तुंग दूरस्थ आध्यात्मिक संभावना को तार कर्म रे देखुना। से बेसी व्यस्त तार तात्कालिक विषय वस्तु जहाँ ताको तुरंत लाभ पहुँचेबो सेटा राजनीति ही थाउ सेटा गोटे सांगठनिक कार्य ही थाउ कौन से सामाजिक कार्य हो। तो मनीष आज चाहूँगी जे वर्तमान जगतर जो कंटेंट रही जो विषय वस्तु रही से अधिक व्यस्त रहा उचित। एवं यहीटा हूँ गोटे रेशनाल बा गोटे प्रैक्टिकल मैन बोली कह जाउछि। तेणु समाज सेवारे देश सेवारे जगत हो मानव समाजर कल्याण ये सबू जो शह शह सामाजिक परिकल्पना रही स्वप्नटा मन आधुनिक मनीष को अधिक आकर्षण करुछि। एवं सबुठारु दुख और परितापर विषय मध्य जे सेथिरे दार्शनिकता एवं धार्मिकता और आध्यात्मिकता रो जो विश्लेषण व व्याख्या कर्म रे हमर सेटा गोटे अचल टंका भली रही जाइछि। कारण आममानकर मन बुद्धि चेतनार आधार रे आम परिवेश तैयारी होछि, आमर माने चिंता करिवार शक्ति तैयारी होछि, आमर घटनाटी को देखिबा बुझिबा जानिबार परिस्थिति तैयारी होछि। तेणु गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे व्यक्ति समाज और मानविकतार अधीनता स्वीकार करने को बेसी भल पाउछि। किंतु सर्वशेष मनुष्य को तार अज्ञानता को तार अहंकारटा को बलि देवा को पड़िबो। आधुनिक मनीष तार क्षमता बढ़िया फल से अधिक अहंगम्य हो पड़ुछि, निज उपरे अधिक भरोसा बढ़ी तार बढ़िया उचित ता मध्य आत्मविश्वास। किंतु एपरि हवा उचित नुहे जहाँ आध्यात्मिक सिद्धांत गुड़िकर चिरंतन मूल्यबोध गुड़िकर विरुद्धाचरण कर। तेणु आमे अहंकार को बलि दबा बा अहंकार को कमे दबा मिनिमाइज करवा से भली गोटे प्रक्रिया रे न जाइकरी गोटे विश्व चेतना रे आमे उद्बुद्ध न होइकि गोटे समूहगत जीवन रे आकृष्ट न होइकरी सामूहिक कल्याण समाज कल्याण लोक कल्याण ठार आमे दूरे की जाइकि आमे व्यक्तिगत अधिक अहं मन्य अधिक गोटे कौन कह संकीर्ण व्यक्तिगत जीवन टे बंचा को एक प्रकार बाध्य होइछु, जा फल आधुनिक मनीष पाखरे समाज गौण हो पड़ी। किंतु
ये सब सत्वे दिने ना दिने आमको सत्य पथरे यात्रा करिया को पड़िबो। सत्य पथ कौन, आम कर्मर आभिमुख्य गुड़िक कौन, आमे काहींकी कर्म करुछंती, ये कर्म गुड़िकर सिद्धांत कौन, ये कर्म गुड़िकर नीति कौन ही पारे, भगवत कर्म कौन, भगवान को उद्देश्य कर्म करुथिले, भगवत कर्म कले आमर कौन सुविधा हो बा कौन आमको लाभ हो, कौन आमको प्राप्त हो, भगवत कर्म आमको क्यों सिद्धि दिगरे अग्रसर कर नेब, यही सब प्रसंग को नहीं आमे आलोचना करि आछंती। तेणु आमे देखुछु जे मनुष्यटी तार सामाजिक रीतिनीति बा तार व्यक्ति मूल्य को, तार व्यक्ति सत्ता को अधिक मूल्य देछि साधारण भाव रे, किंतु अवतार पुरुष आसिछंती, दिव्य मानव ई जगत को आसिछंती, सेमाने तांकर चेतनार जो उत्कर्षता रहितिला, सेमानंकर पाखरे जो शक्ति रहितिला, से आध्यात्मिक शक्तिर प्रभाव बलरे, आध्यात्मिक शक्तिर प्रयोग बलरे मनुष्यर चेतना को उद्बुद्धित करिछंती, उद्बुद्ध करिछंती, ताको प्रेरित करिछंती एक उच्चतर जीवन यापन करिया पे। तेणु आपण देखिबे हिंसारे प्रमत्त अति प्राणिक जीवन बंचुथुवा मनीष दिने बुद्धंक मार्ग रे चलिबा पई सहमत होइतिला, धार्मिक विद्वेष रे अंध हो जाइथुवा मनीष दिने गांधीक मार्ग रे चलिबार पथरे स्थिर हो सारिथिला, एवं जो माने मनीष को दास करी रखिथिले, कृतदास व्यवस्था भी दिने पृथ्वी रो उच्छेद होइछि, नरबली प्रथा मध्य पृथ्वी रो उच्छेद होइछि, बाल्य विवाह ठारू आरंभ करी सतीदाह पर्यंत जो भयंकर सामाजिक रीतिनीति सब रहिथिला, सेटा मध्य आम चिंतार आम चेतनार अग्रगति फल परिवर्तन होइछि एवं मनुष्य नुआ करी तार चिंता जगत को गठन करिछि एवं तार कर्म प्रति गोटे नूतन इंगित, गोटे नूतन संवेदना, तार कर्म प्रति एक नूतन दृष्टिकोण को पोषण करिछि। एथिरे आमे जहाँ आलोचना करथिले गत थर, तापरे आमे नूतन आलोचना को आसुछु। कथाटी परिथिला जे गीतार एक तत्व रही, से तत्वटी है पुरुषोत्तम तत्व, जहाँ हूँ तार केन्द्रीय तत्व। आम जो पुरुषोत्तम कहूँ से हूँ तो आमको कथाटी बेसी धार्मिक बेसी आध्यात्मिक लगु थाई पारे, किंतु जदि ताको आधुनिक परिभाषा कहवा से हूँ अति मानव। तेणु अति मानव कहले एक समर्थयुक्त, अधिक जोगयुक्त, अधिक समतायुक्त, अधिक दिव्यतायुक्त एक मानव, जार व्यक्तित्व एक सर्वातीत और विश्वमय परम भागवत पुरुषंकर सत्ता। आमर सत्ताटी आज तारीख रे व्यक्तिगत, किंतु ताकू जदि यूनिवर्सालाइज करा जिवो, ताकू जदि प्रचुर सामूहिकता प्रदान करा जिवो, तार संवेदना और तार प्रेम, तार प्रभाव, तार से कथा गुड़िक मनीष जाति को अछपा ना। जो मनीष जाति को भल पाए, जो मनीष पृथ्वी को भल पाए, जी विश्व को भल पाए, ईश्वर को भल पाए, से सब मनीषंकर जो भागवत पुरुष तांको कहा जाए, से भागवत पुरुष मानकर सत्ता, तांकर प्रकृति, तांकर चेतना, ये समस्त उत्सर्गीकृत, से निजर जो अहं मान्यता न थाए, निजर क्षुद्र सत्ता न थाए, से माने एक महत्तर सत्ता को उन्नीत हो सारी थांती, महात्मा हो सारी थांती, महामानव हो सारी थांती। आमे तांको महापुरुष आख्या दो एवं ताही होचे दिव्य स्वरूप प्राप्त हवा। तेणु गोटे साधारण सत्य आमे गति करुछु, ता होची व्यक्तिर विकास कर्म माध्यम रे। एटा होची गोटे सर्वोत्तम प्रयोजन हो पारे, कारण जदि मोर विकास हो नहीं, मोर उन्नति हो नहीं, मोर किसी उत्तोलित
बा उत्तरित अग्रगतिर मार्ग प्रगतिर मार्ग मु जाऊ नहीं ताले मो कर्मटी एक प्रकार व्यर्थ हो जदिओ व्यर्थ मु से कथाटी उठौ ना मुझे मंथर हो कौच स्टैग्नेंट वाटर भली से गतिशील नुहे नदीर जल भली से भौरी भितर जाऊ ना किसी समय पर से स्टैग्नेंट हो स्थिर हो जाफल नाना प्रकार जो नेगेटिव एनर्जी गोटे प्रकार असुविधाजनक स्थिति पहुँचा पड़ो ताहले आम बर्तमान कर्मर उद्देश्यटा को बुझू कर्मटी जहाँ ही था आपण हुए तो बड़ काम कर बड़ ऑफिसर अच्छा आपड़ गोटे छोट जगार काम कर जड़े कृषि कर जड़े पशुपालन कर जड़े को ऑफिस रे काम करती जड़े से केते प्रकार ऑफिस रे काम कर लोक अच्छा किए दुकान कर किए परिवा बिकुंट किए परिवा चाष कर केते डाक्तर अच्छा इंजीनियर अच्छा ये देश रे बा ये पृथ्वी रे वर्तमान कर्मर हिसाब करवा वास्तविक केते प्रकार कर्म अच्छी वृत्तिगत दृष्टि कौशल दृष्टि वर्तमान हिसाब करहबनी एत अगणन ताले अगणन कर्म गुड़िकर लक्ष्य कौन तार लक्ष्य होची आमे निम्नर जो अपूर्ण प्रकृति भितर बा प्रकृतिर जो त्रिगुण सत्व रज तम द्वारा प्रभावित माया भितर आमे निजको उठाई आनी धीरे धीरे गोटे प्रगतिशील दृष्टिकोण रे ताकू जदि आमे कहि परिबा इवोल्यूशन गोटे प्रकार विवर्तन मध्य दे आमे सत्ताटी को निम्नरू एक उच्चतर दिगरे गति करेबा कर्मर लक्ष्य तार उद्देश्य ताहा आमे ई जगत रे बारंबार जन्म नबार कारण ताहा ये जगत रे आसी कर्म गुड़ी को निष्पादन करिवार कारण से बारंबार शरीर धारण करिवार उद्देश्य मध्यता तेणु आमे किभली भाव रे भगवतमय हेबा किमिति भाव रे आम भितरे भगवानंकर सत्ता तांकर चेतना एवं भगवानंकर प्रकृति आमर एटा निम्न प्रकृति जहाँ स्वार्थपरता अहंकार अज्ञानता कामना वासना द्वारा अध्युषित तार अंधकार द्वारा अध्युषित किंतु भगवानंकर जो चेतना से आलोकमय विश्व चेतना तार प्रेम चेतना आनंदमय चेतना सच्चित आनंदर कथा कहुई आमको बा भगवान सहित किभली भाव में आम साजुज्य गोटे प्रकार इक्विवेलेंसी गोटे सालक्य भगवान जो रहती आम से रही पारिबा एवं गोटे प्रकार सादृश्य बा साधारण भगवान जहाँ करती आम ता करि परिबा से भली गोटे स्थिति को उन्नीत हवा हूँ योगर लक्ष्य तेणु योग को जो माने प्रणीत करथिले जो माने कर्म को योग बोली अभिहित करथिले से महात्मा मानकर गोटे दृष्टिकोण थिला ता दृष्टिकोण हला एई जो माने पशु मनुष्यति गोटे देव मनुष्य रे परिणत हबो एवं आमाने प्राण जगतर जो अंध आवेग गुड़िक द्वारा आज अध्युषित होती अधीनस्थ होती दिने आमे भगवानंकर से देवमय सत्ता द्वारा निश्चित भाव में अभिषिक्त हवा एवं ताकू आम भगवत गीता ब्राह्मी स्थिति कही ब्राह्मी स्थिति संपर्क में आम अति प्रांजल आलोचना पूर्वर करिसेंती तेबे से मूलतः कौन हम मूलतः आम भगवान को समस्त स्थान रे तांको उपस्थिति को अनुभव करिपरिबा एवं भगवान को कौटी अनुभव करियो से तो लोकालाइज रे नहंती ना से गोटे निर्दिष्ट स्थान रे नहंती भगवान सर्वभूत रे रहिचंती समस्त अणुपरमाणु रे तांकर उपस्थिति रहिछि जिनिसटी जेते बड़ होइताउ जिनिसटी जेते क्षुद्र होइताउ सब स्थान रे परमात्मांकर उपस्थिति रहिछि एवं सेही परमात्मा को जेतेबेले आमे सर्वभूत रे देखि पारू ताले से व्यक्तिटी हो पारे ब्राह्मी स्थिति रे थिबा मनीष ब्रह्मचेतना रे थिबा मनीष समता रे थिबा मनीष एक आध्यात्मिक मनीष अर्जुन प्रश्न पचारिले जो माने ब्राह्मी स्थिति लाभ करिसंती स्थित प्रज्ञ हेइसंती तो से माने किभली कर्म करंती
मन करंतु जो दिन अर्जुन युद्ध को ओह्लैथिले गीता शुणिया पूर्वर साधारण चेतनार एक मनीष थिले, जड़े योद्धा थिले, जड़े क्षत्रिय थिले। युद्ध करिवार तांको पाखरे एक कामना रहितिला, युद्धरे विजय लाभ करिवार एक कामना रहितिला। से निजे युद्ध करुछन्ति बोली तांको एक धारणा रहितिला एवं युद्धर जो हानि लाभ द्वारा, युद्धर जय पराजय द्वारा से तांकर चेतना को प्रभावित करुथिले। किंतु जेतेबेले से भगवत गीता शुणिले, भगवत गीता पूर्वर अर्जुन एवं भगवत गीता परर अर्जुन भितर एक आकाश पाताल फरक रही। तेणु भगवत गीता को तार सत्य को अपनार करिथिबा से अर्जुन से दिन थिले भगवानंकर आयुध, भगवानंकर एक अस्त्र, भगवानंक द्वारा कार्य करुथुवा जने कर्मी, भगवानंक पई संघर्ष करुथुवा जने आलोकर सेना। सी थिले आलोकर कर्मी, भगवानंकर सत्य पई, तांको भगवानंकर प्रतिष्ठा पई, तांकर न्याय, तांकर धर्म, तांकर मानविकता, तांकर मनुष्यर जो उत्तरित चेतनार गोटे प्रतिभू भाव अर्जुन काम करथिले। किंतु ता पूर्वर अर्जुन थिले निराशा जर्जरित, द्वंद्व विजड़ित, अनेक बाटरे निजको भ्रमित करुथुवा, निजे कर्ता मन्य थिबा, निजे सबकिछि जानिथिबा, एई भली गोटे अहंमान्यता तांको पाखरे रहिथिला एवं निजको से सबुठारु परम वीर बोली भाविथिले। किंतु जेतेबेले भगवत गीता शुणिले, से भगवानंकर साहाय्य बिना एठारे किछि हेई पारे नाही एवं सब कार्य भगवानंक पई करा जाउछि। अर्थात अर्जुनंकर कर्मटी, तांकर व्यक्तिगत कर्मटी एक कर्मयोगरे वास्तविक परिणत होइतिला। तेणु तांको जहाँ उत्तर मिलिथिला दिव्य गुरु पाखरु, दिव्य गुरु से कृष्ण तांको कहिथिले जे मानसिक माने मनरे बुद्धि, नैतिकता बा हृदयर आवेग स्तर रे जो व्यक्तिगत कामना वासना थिबा थाए, ता केबे हेले भगवत कर्मर प्रेरणा होई परिबो नाही। ताले आमे एई धाड़ीटा शुणिला परे निजको विश्लेषण करी भी परिबा जे प्रकृत रे आमे केते काम निज मनरु करुथाउ, केते काम आमे बुद्धि भितर करुथाउ, आमे गोटे नैतिकतार भूमि रे रही कि सेटा करिथाउ, हृदयर आवेग गुडी को नै काम करथाउ, ती इमोशंस। गोटे बापा ता काली सकाळे मते जने बंधु कहउथिले भारी दुखदायक घटना, जने बहुत कम दरमा पाती, घरे अभाव लगी रही है, 2-3टी पिला पाठ पढ़ा खर्च रही, स्वास्थ्यर खर्च रही, रहीबार खर्च रही। आज दुनिया रे दरदाम बढ़ुवा दुनिया रे गोटे बड़ परिवार 4-5 जनिया परिवार चलवा स्वल्प रोजगार बहुत कष्ट। जो सी कौन करती दरकार पड़े कठिन परिश्रम करती छुआ मान भल रखापी एवं दरकार पड़े सेपरी किसी कार्य करती जो गुड़िक भारी चिंतनीय। तो जो ये प्रसंगटी से मो आगे रखिले मु भाविली से दुख भोग करुवा एवं से दुख भोग सत्वे तार पिला मानकु मनीष करने जी संकल्प करि इच्छा करुछि तो से भगवान भिन्न किसी भी पार। तेणु आम अतीत मुनि ऋषि माने आम बापा मान पाखरे आम माता मान पाखरे भगवान से रूप को देखी कारण गोटे संतान पाई तार पितामाता प्रकृति में जी संघर्ष करती जी कष्ट उठाती सकल परिस्थिति सत्वे पिलाटी को भल रखापी जो प्रकार त्याग स्वीकार करती जो तितिक्षा को वर्ण करती से कर्मयोग ठार किसी कम ना। दरकार पड़े पिलार मंगल पिला को जीवन में बंचे रखापी माँ भी भिक्षा कर बापा भी भिक्षा करती बहुत कष्ट से माने जे मनीष करुँच यहाँ तो भगवान इच्छा भीतर कार्यकारी होची से प्रेरणा। किंतु सही स्तर रे थिबा मनीषटी बा सही भली भूमिका रे थिबा मनीषटी हठात से बुझी पारे नहीं से गोटे दिव्य कर्म करुची आमे ताको हयतो दूर आमे देखी भावुछु से भगवान प्रेरणा रे काम करुची। किंतु आमको दिव्य गुरु श्री कृष्ण कहते जे आमे जदि त्रिगुण अधीनस्थ हो मन बुद्धि शरीर आधार रे कर्तामन्यतार सहित अज्ञानतार सहित कर्मटी करुछंती
ताले से कर्मटी गोटे यथार्थ प्रेरणा है कि आम पाखे आसीपर ना तो कारण से हूँ गोटे बद्ध पुरुष तो बंधन भितर अच्छी तार ज्ञानटी फिटी ना तेणु ताको मुक्ति मिली ना किंतु जो दिन तार ज्ञानटी प्रकृत गोटे शिखर को उन्नीत हम से जड़े ज्ञानी मनीष परिणत हम से ब्राह्मी स्थिति को जीवे से जड़े मुक्त पुरुष हे ये मुक्त पुरुषर कथा आम लाइफ डिवाइन रे आलोचना करुले से मुक्त पुरुषर कथा बर्ट्रांड रसेल तांकर फ्रीमैनशिप रे कहिसंती से मुक्त पुरुषर कथा बुद्ध भी कहिसंती से मुक्त पुरुषर कथा कृष्णमूर्ति कहते श्री अरविंद से मुक्त पुरुषर तत्वटी पुरुषोत्तम तत्व ताहा जड़े पुरुषोत्तम जी व्यक्ति पुरुषोत्तम जी पुरुषोत्तम सत्ता सी जे जड़े मुक्त पुरुष एथिरे कौन से संदेह नहीं तेणु जी मुक्त पुरुष तांकर कौन हुए ताले आपण कहे जे मुक्त पुरुष बद्ध पुरुष भितर कौन फरक रही आम तो देखिया को एकापरी कला भागरा डेंगा भागरा मोटा बा पतला आम हुए तो आम आखि दुईटी कान दुईटी नाक गोटे से हसे से मन दुख करे से खाए ताको कष्ट लगे ताको क्लांत लगे से सोई पड़े खेले खुशी हुए तो फरकटा कौटी मुक्त पुरुष पाप पुण्यर निम्नधर भेद को अतिक्रम करिथाए नैतिकता अनैतिकतार सीमा को डेई अति नैतिक स्तर से पहुँची थाए पाप पुण्यर ऊर्ध्व को जाइथिबा भल मंदर ऊर्ध्व को जाइथिबा महिमान्वित पवित्रता मध्य बास करुथबार व्यक्ति होचंती मुक्त पुरुष यहीटा को सहजरे बुझी हेब नहीं जे आपण श्रीकृष्णकर जीवन को देखंतु बुझी परिवे आपण जदि श्री अरविंद को जीवन को देखिए ताहले बुझी परिवे जे किभଳି भाबरे से माने भल मंदर ऊर्ध्व को पाप पुण्यर ऊर्ध्व को नैतिक अनैतिकर समाज सामाजिक चालीचलन सामाजिक जो मापकाठी रही भल मंदर तार ऊर्ध्व को से माने किभଳି भाबरे उठी पारिथिले एक विराट सामूहिक मंगल पाई से माने किभଳି कार्य करि पारिथिले ए संपर्क रे आमे हमर आलोचना को आहुरी व्यापक भावरे कहि परिबा जे सेई मुक्त पुरुषों द्वारा निस्वार्थ कर्म हम बा तांकर पूर्ण आत्मविकास से काम कर नुहे कारण तांकर आत्मविकास हो सारी जिते पर्यंत आत्मविकास पूर्ण हुए नहीं से पर्यंत मुक्ति भी आसे नहीं तेणु कौन पाई से काम करेंगे श्रीकृष्ण भगवत गीतार बारंबार कहते जे मोर पेटी पाइबार किसी ना मत सब किसी मिल सारी मत किसी हजेबार ना किसी हर कि चलीज ना मोठू अर्थात तांकर कर्मर उद्देश्य कौन थिला बहुत चमत्कार शब्द रे से कथा कहुई तार गोटे बड़ शब्द है सक्तः कर्मणि अविद्वांस जथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकित्सु लोक संग्रह अर्थात ज्ञानी लोक मानक पई विद्वान लोक मानक पई से माने लोक संग्रहार्थे कर्म करते ये गोटे शब्द व्यवहार हो लोक संग्रह माने आम कौन बुझिया लोक मानक जो कल्याण को लोक संग्रह कहि परिबा तो सेठी तांकर किछि प्राप्त हवार नहीं यदि महाभारत युद्ध रे जय हुए कृष्ण राजा हवार नहीं जदि पराजय हुए ताले कृष्णंकर किछि हानि हवार नहीं किंतु महाभारत युद्ध रे श्री कृष्ण उपस्थित रही अर्जुन सारथी रूप में कर्म करुछंती से कर्म कौन पाई करुछंती ना से देखुछंती जदि जड़े युधिष्ठिर जी धर्मराज थे जी धर्मर अवतार थे सी जदि राजा हुंती ताहले प्रजा मानकर अधिक मंगल हम प्रजा मानकर कल्याण पाई प्रजा मानकर विकास पाई प्रजा कहले लोक सकल
ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଯେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଶିକ୍ଷା, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅବତାର ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ସେଇଟା ହେଲା ଲୋକଶିକ୍ଷା ଆଉ ଲୋକମଙ୍ଗଳକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥିବା ମଣିଷ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହାନୁଭବତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ସେଇଭଳି ମହତ୍ତର କର୍ମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କରିକି ବି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ବୋଲି? ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ମାନଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟାର୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ କହିପାରିବା, ମେଜରିଂ ଷ୍ଟିକ୍ କହିପାରିବା, କର୍ମର ମାପକାଠି। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବ। ମଣିଷ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ, ରଚନାତ୍ମକ କର୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣାର କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଅହିଂସାର କର୍ମୀ ଭାବରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ମତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଫଳତଃ ବୃହତ୍ତର ସମାଜର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ଏକ ଧ୍ୱଂସ ପଥରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ଏକ ଅବନତି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଭାବାପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମୂହକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଦିଗରେ ମାର୍ଗ ବତାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଗାତା, ସେମାନେ ଥିଲେ ଏକ ମାନବ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଚେତନାକୁ ଅସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାକୁ ବିରାଟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଅହଂପ୍ରସୂତ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅବତାରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆମକୁ ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି, ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଫଳରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନୀ ତାହେଲେ କର୍ମ
किपरि करती बा कौ कर्म करती भगवान को कहुच्छी भगवत कर्मी जी भगवत भावापन्न जी दिव्य मानव जी मुक्त पुरुष जी पुरुषोत्तम जी अति मानव जी दिव्य मानव सी कर्मटी सबु स्तर में करुँच व्यक्तिगत कर्म भी से करेंगे से कौन गाधेबे ना से कौन लुगा पिंधे ना ना सी जो घरे रोचन सफा करेंगे ना कौन न करेंगे गांधी कौन कर आम सन्थ मान देखीचु से कौन न करती चाष करती फूल गछ लगाती फल गछ लगाती अन्यर सेवा करती कौन न करती से तेणु व्यक्तिगत स्तर में से माने कर्म करती पुणी सामाजिक स्तर में भी कर्म करती ये जो उभय स्तर रही कर्मर से बुद्धि हृदय शरीर मध्य देकी भी से काम कारण बुद्धि हृदय को छाड़िकी मन प्राण को छाड़िकी आमर कर्म कर कौन साधन अच्छे तेणु जड़े भगवत ज्ञानी मनीषटे मुक्त पुरुषटे जो भाई तार शरीर को नहीं काम करे अज्ञानी मनीष भी निज शरीर को नहीं काम करे किंतु कामटार परिसरटा हूँ अलग साधारण चेतनार अज्ञान प्रसूत मनीष तार कर्मर परिसरटा व्यक्तिगत और संकुचित किंतु मुक्त पुरुष तार सामाजिक जो कर्मर परिसर से संकुचित नुहे से व्यापक से बृहत्तर गोटे कांथ भितर गोटे सीमा भितर गोटे तत्व भितर गोटे द्वंद्व भितर तार कर्मटी सीमित नुहे तेणु कर्म फल स्पृहा न थाए मुक्त मनुष्यर एवं कर्तापणर किसी अहमिका न थाए से जानीपारती भगवान ही कर्ता भगवान ही शक्ति भगवान ही प्रेरणा भगवान ही उद्देश्य तेणु मनुष्य जात को ऊर्ध्व को उत्तोलन करने से माने कर्म करुछन्ति तेणु मुक्त पुरुष हूँ से मनीष जी ये निम्न प्रकृति को भगवान प्रकृति रूपांतरित करती तेणु भागवत प्रकृति है पुरुषोत्तम प्रकृति तेणु आमे ये जो पुरुषोत्तम कथाटी आसिला से आम बुझी नवा जे गोटे क्षर आ गोटे अक्षर माने गोटे रही विनाशशील अन्यटी अविनाशी गोटी है अमृतमय गोटी है मृत्युमय गोटी है मिथ्यामय अन्यटी है सत्यमय गोटे अंधकार प्रतिनिधि अन्यटी आलोकर प्रतिनिधि तेणु ये जगत रे जहाँ उपस्थित रही जहाँ सत्तार रही से तो किसी कथा निम्न किसी कथा अर्थतर ये गोटे मिलामिशार पृथ्वी अच्छी आम गोटे को अन्यटा को निर्वासन दे पार नहीं आम निर्वासन स्थिति नहांती तेणु श्री अरविंदर मार्गटी समन्वयर मार्ग कृष्णकर मार्गटी समन्वयर मार्ग तेणु ताको से माने ग्रहण करिसंती जिते बेले ये क्षर अक्षर दुईटी को से ग्रहण करुछंती माने कहंतु शरीर भितर आम मन बुद्धि भितर भूल थिबा अनेक भ्रांति रही एवं ता भितर मध्य आलोकर अवस्थान रही ज्ञान भी आम पाखे रही विवेक रूप से आम पाखे कामना वासनार अज्ञानता भी रही किंतु ये दुईटी को गोटे रूपांतर पथरे नहीं विवर्तनर कार्य करवा भगवान के उद्देश्य निजको उत्तोलित करनवा एटा होची गोटे समन्वयर कार्य यही समन्वयटा होची दिव्यर कार्य एवं ये जो समन्वयटी से माने करुछंती से माने हेले महापुरुष आपण देखिबे महापुरुष तो आज आज मु कहूली जे जिते पर्यंत आमे समन्वयर पथरे आसीना गोटे उभयर जो माने विरोध भली लगुवा विषय गुड़ी को परिपूरक भाव में ग्रहण करना कम्प्लीमेंट टू इच अदर आम गोटे को परित्याग करके अन्य को ग्रहण करिवार जो मानसिकता रखीचु बा गोटे सुपरियर अन्यटी इनफीरियर तेणु इनफीरियर को त्याग करदे ताको फिंगिदवा ताको बाहर करदे सेपरी जो भावना सब रखीचु से भावना को मनीषटी को मुक्ति दिगरे नहीं पार नहीं बरं आहरी अधिक बंधन रे पड़ो तेणु भगवान तांकर जो शक्ति भगवान तांकर प्रकृति भितर दे कार्य करुछंती आउ किंतु मनीषटी मध्य तार निजर
प्रकृति भितर एवं तार जत्सामान्य जो शक्तिटा को सी आपणार करिछि आत्मस्थ करिछि ता बଳରେ काम करे किंतु मनीष कौन हो जाए बद्ध हो जाए किंतु भगवान साजुज्य लाभ करथिबा भगवान सहित गोटे प्रकार सालोक्य प्राप्त होता व्यक्तिटी केबे आबद्ध हुए नहीं बद्ध हुए नहीं कि से अधीन हो रहे नहीं। तेणु भगवान शक्तिर प्रत्येक गतिवृत्ति सृष्ट जीवजगतर प्रत्येकटी अणु परमाणु मध्य स्पंदित अनुप्राणित अनुरणित होई कथाटी को बुझापी आमको बहुत जटिल प्रक्रिया गोटे जटिल मानसिक विश्लेषण मध्य दे गति करिया पड़िबो जे ये जगतटी उद्देश्यहीन नुहे। यही जगतर लीला पछरे यही जगतर समस्त कर्म पछरे यही जगतर समस्त चंचलता पछरे समस्त गति पछरे जनकर इच्छा जनकर संकल्प अति दृढ़ भाव रे कार्य करुछि से होचंते भगवान। ये जो कथाटी को श्री अरविंद लाइफ डिवाइन पुस्तकर द कॉन्शियस फोर्स प्रबंध रे अत्यंत अति मार्मिक भाव रे अति स्पष्ट और प्रांजल शब्द रे बुझीचंती जे गोटे उई हुंका को भगवान जेतिकी निविष्टतार सहित गढ़ती गोटे सौरमंडल को बा गोटे छायापथ को मध्य सेतिकी निविष्टतार सहित गढ़ती भगवान ज्योतिष्क आ माटी तैयारी होता उई हुंका भितर किछि फरक नहीं। आमे किंतु परिमाणात्मक ज्ञान भितर को प्रवेश कर जाऊ किए बड़ किए सान हे तो गुणवत्तार गोटे फरक भितर को आमे चली जाऊ कोटा अधिक मीठा लगुच कोटा कम मीठा लगुच किंतु कॉन्शियस फोर्स कहूँ जहाँ कि जगत रे अच्छी ता पछरे एक उद्देश्य रही एवं सही उद्देश्यटी आम भितर जो बुझी जदि आम से उद्देश्यटा को बुझी पारचु ताले सेटा हूँ आमर ज्ञानर स्थिति भगवान लीला को बुझीवार शक्ति जदिओ से भली लीला को बुझापी गोटे विराट सामर्थ्य आम वर्तमान मन पक्षरे वर्तमान बुद्धि पक्षरे संभव नुहे कारण तांकर जो महाज्ञान तांकर जो सृष्टि रहस्य तांकर जो महालीला एटा आमर क्षुद्र मन बुद्धिर अतीत से आमे मनत्तर आउ एक सत्ता को अतिमानस को अपेक्षा करुछु विवर्तन बल से अतिमानस जेतेबेले यही पृथ्वी रे संभव हम विज्ञान घन चेतना भितर को मनुष्यर अवतरण हम सेतेबेले सी निश्चित भाव में यही सृष्टि रहस्यटा को भगवान लीलाटी को बुझीपर एवं प्रत्येक अणु परमाणु भितर काम करुवा भगवान से स्पंदन को एक उद्देश्यपूर्ण अनुरणन को से अनुभव कर आम भितर से उत्साह होई आम भितर प्रेरणा होई आम भितर ज्ञान होई आम भितर शक्ति होई आम भितर सामर्थ्य होई आम भितर सी कर्मर एक दक्षता है कि आम भितर कर्मर एक आस्पृहा कि से कार्य करुछंती आमको कार्य करे नौछंती केवल मुक्त पुरुष जाने जे भगवान ता जरिया रे कार्य करे नौछंती किंतु बद्ध पुरुष जाने से निजे कार्य करुछि। तेणु दिव्य कर्मर नीति जो प्रबंधटी आम अध्ययन करि आछंती ता जेहेतु बहुत व्यापक बहुत बड़ से आज मध्य आमे ई जो प्रबंधटीर उपसंहार आड़ को जाई पारले नहीं। ये आलोचनार आहुरी मार्मिक दिग आहुरी स्पष्ट दिग गुड़िक आहुरी दरकारी प्रयोजनीय दिग गुड़िक आमको अपेक्षा करुछि। आमे आसंता मासरे जो शेष रविवार रे जो आलोचना हब से आलोचन आमे यार उपसंहार को जीवा आज पाई आमर आलोचना को आमे इठी रखुचु। समस्त को बहुत 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 धन्यवाद। मांकर करुणा आम समस्त उपरे वर्षा हो थाउ कारण श्री अरविंद प्रणीत यही गीता ज्ञान यही गीता निबंधमाला अध्ययन फल आमे समस्ते आम कर्म को एक नूतन मूल्य देवाई ताकू एक नूतन प्रांजलता भितर को एक नूतन आलोक आड़ को रूपायित करने एक प्रकार प्रेरणा पाउछंती एक स्पष्ट दिग पाउछंती
एथिरे निश्चित भाव माँ आम उपरे निश्चय तांकर कृपा वर्षा करिवे और आमे से निश्चय खुशी होउथिबे जे तांकर संतान माने एक जटिल मनस्तिक प्रक्रिया मध्य देई भगवत अभिमुखी होगापाई आज संकल्प करुछंती बा किछि साधना करुछंती किछि आयुषर किछि समय को से माने एथिरे निश्चय निवेश करुछंती। तेणु मो कृतज्ञतार सहित आज आलोचना को रखुछि। वंदे मातरम।